جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت صاحب، آپ کافی عرصے سے کئی مہینوں سے شاید مسلسل جب بھی بات ہوتی ہے انٹرنیٹ کی تو آپ فون اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یار، بل پے کرنے کے باوجود میں انٹرنیٹ کی مطلوبہ سہولت مجھے دستیاب نہیں ہے۔ اب کئی مہینے کئی ہفتے گزرنے کے بعد انٹرنیٹ کا مسئلہ، انٹرنیٹ کی سپیڈ کا مسئلہ اس حد تک گمبھیر ہو چکا ہے کہ یہ قومی مسئلہ بن چکا ہے ہمارا۔ آج پارلیمان میں بھی اس کی پکار سنائی دی، لیکن جو دلچسپ بات ہے، جو میرے لیے بڑی آج خبر ہے کہ حکومت کیونکہ اس کی ذمہ دار ہے، حکومتی اتحادی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی آڑے ہاتھوں لیا حکومت وقت کو اس انٹرنیٹ کے معاملے پہ۔ تو میرے پاس ایک کلپ ہے، سن لیں، دین آئی وانٹ کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں۔ سنائیں جی، پیپلز پارٹی نے آج کیا کہا فلور میں۔ اس ملک میں آئی ٹی کا کیا نظام ہے، انٹرنیٹ کی کیا حالت ہے۔ آپ ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا بل لے آتے ہیں، مجھے تو ہنسی آ رہی تھی اس دن وہ بل جب آیا، اور یہاں پر جو ذمہ دار ہیں وہ یوزرز کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر غلط ہوگا۔ جن لوگوں نے تباہی پھیلائی ہے ڈیجیٹل سپیس کو ٹیررزم یا ہراسمنٹ کے لیے یوز کیا ہے، ان کی میں مذمت کرتی ہوں۔ I totally disagree with the way they are using things and platforms on the digital cyberspace. لیکن سر پھر باقی لوگ جو یہ کام نہیں کر رہے ان کو تو آپ سزا دے رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس متاثر، بزنس متاثر، ہم ای کامرس کی بات کرنے کے لائق ہی نہیں رہے ہیں۔ الزام کنزیومرز کو، یوزرز کو دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جا کے اتنا ستیاناش انٹرنیٹ کا کیوں مار دیا گیا ہے اس ملک میں؟ آپ ایکس اٹھا لیں، آپ زیڈ اٹھا لیں، یہاں وائس نوٹ نہیں کھلتے، تصویریں نہیں کھلتی۔ یہ کون سی فائر وال آپ لگا رہے ہیں؟ خدا کے واسطے جن لوگوں کے کاروبار اس سے منسلک ہیں ان کو اربوں کا نقصان ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ اب تو ایسا ستیاناش کبھی نہیں ہوا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کیبنٹ ڈویژن ذمہ دار ہے تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں۔ آپ کہیں کہ ہم خود ذمہ دار ہیں، میں نہیں چاہتا کہ لیڈر آف ہاؤس تک بات جائے۔ مہربانی کر کے سر، اتنی بدحالی میں نے کسی وزارت کی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی جو کارکردگی اس وقت ان کی ہے۔ سچ ہے اور رسوائی بھی۔ اور میرے پیارے، گزارش یہ ہے کہ میں یہ تمہیں شروع سے کہہ رہا ہوں، یہ بندر کے ہاتھ اس طرح آ گیا ہے۔ بندر کون ہے اس میں؟ بندر یہ حکمران ہمارے، انہوں نے ایک لفظ کہیں سے سیکھ لیا، فائر وال۔ اچھا جی، پھر کیا ہوتی ہے جی؟ اور چین نہیں جی؟ او بھائی صاحب، چینیوں کا اس وقت جو ہے عالم یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کی اپنی چیٹ کی واٹس ایپ سے بڑی، تمام سوشل میڈیا نیٹ ورک ان کے اپنے، اس سب کے باوجود کیمرے کی طرف دیکھ کے بتاؤ، تمہیں ایک مرتبہ چین جانے کی دعوت تھی، میں نے کہا کہ پروگرام کون کرے گا؟ تم نے کہا کہ تمہیں یہ انشور کیا گیا ہے کہ وہاں تم اسکائپ کے ذریعے مجھے جوائن کرو گے۔ میں نے کہا کہ یار تم نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں تو یہ گوگل شوگل نہیں ہے، تو تمہیں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ نہیں، آپ کو جہاں بٹھایا جائے گا وہاں وی پی این ہوگا۔ اس کے باوجود لیکن بعد ازاں پتا چلا کہ جہاں آپ کو لے جایا جائے گا وہ چین کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر وی پی این کی اجازت نہیں ہے، وی پی این آپریٹ نہیں ہوگا، تو آپ کو معذرت کرنا پڑی۔ یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ اچھا، جتنے چین جواب دے دے، جتنے چین وی پی این دا کچھ نہ کر سکے فائر والا سمیت، اتنے ذات دی کوڑ کی لی تے شتیرہ نو جپے۔ اپنی اوقات دیکھو، ہر چیز میڈ ان لالا موسیٰ۔ ایک زمانہ تھا جگاڑ لگ جاتی تھی، ناؤ دس از انٹرنیٹ۔ اب کر کے ایک خاتون ہمارے ہاں شزا فاطمہ، ان کا اس میں گرامی ہے ماشاءاللہ، انگریزی میں ایک محاورہ ہے، اس کو نیپو بیبیز کہتے ہیں۔ نیپو بیبیز از نیپوٹزم، رشتہ داریاں۔ شزا فاطمہ خواجہ آخر میں آتا ہے، تے آ گیا نا نیپوٹزم، کوئی موروثی سیاست، کیا ٹیلنٹ کی اپنا
नहीं, शी इज गुड पॉलिटिकल. स्टीव जॉब्स ना पढ़िया ने की मसला कोई नहीं मतलब ठीक है, उनकी एक अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और स्ट्रगल है. क्या? पार्लियामेंट में बड़ा एक स्ट्रांग रोल उन्होंने प्ले किया है हमेशा से. कभी गिरफ्तार हुई नहीं इस पूरे अरसे में जब वो वोट को इज्जत मांगा करते थे? आजकल तो जिल्लत मांगते हैं. लेकिन ठीक है, वो ख्वाजा आसिफ साहब आपके दोस्त की अच्छा उनके रिश्तेदार हैं. अच्छा नहीं, मेरा ख्याल था शायद चले फिर तो और ज्यादा शर्मिंदगी की बात. देखो डिलीवर तो कर रही है ना. क्या किया हुजूर? इन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया है, उसका बड़ा एक तो नाम बहुत क्यूट रखते हैं ये आजकल की, these nepo babies of these days. The Digital Nation Pakistan Bill 2024. इसका मकसद पता है क्या है? कि तुम्हारा नाम अदनान है, ये अदनान हैदर नहीं रहेगा, तुम्हारा एक नंबर हो जाएगा. तो इंसान नहीं, एक नंबर हो जाएगा, डिजिटल नंबर. बस तेरा नाम हो जाएगा कैदी नंबर 804. अच्छा, इमरान खान से मुस्तार लिया ये आइडिया. नहीं नहीं नहीं, ओहो चल ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੈਦੀ. हाँ, तुम हुक्मरानों के कैदी होगे. हुक्मरान तुम्हारा नंबर देगा, तुम अपना नाम खो दोगे, तुम्हारी शनाख्त इंसान की नहीं रहेगी, तुम डिजिटल बन जाओगे, तुम एक अदद बन जाओगे. तो ठीक है ना, वो आईडी कार्ड नंबर भी तो अदद होता है ना, तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि मेरी आइडेंटिटी चैलेंज हो रही है. हो गई. फाइन. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर की तो खाली ये आईडी कार्ड तक बात नहीं रही. अब ये होगा कि आपके तमाम वो पहले ही आपका फॉर्म इससे इंटरनेट तेज हो जाएगा इससे. ये तो और हल्का आएगा वो कर दो. खैर एनीवे करते कराते मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करूं? नादरा में हमारी सारी फैमिली वो होती है ना. हाँ, पूरा फैमिली ट्री उसको कहते हैं. उसके बाद अल्लाह तुम्हारा भला करे, नादरा ही में उसको कनेक्ट किया गया है कि आप अगर फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो तो वो भी उसमें आता रहता है. सारा कुछ उसमें डाटा आ जाएगा, आ जाए. कंपाइल्ड हो जाएगा ना सारा डाटा उसमें. क्या ये वाकया दुरुस्त है कि जब इस वक्त एक अहम ओहदे पर फायज शख्सियत का नाम चल रहा था तो नादरा के रिकॉर्ड से चोरी करके कुछ गैर मुल्कों को पहुंचाया गया, ये तासुर देने के लिए कि जी इनके खानदान के अफराद फला फला मुल्क जाके. तो ये आप क्या ट्रैवल हिस्ट्री दी गई, पूरी फैमिली ट्री दिया और गया. सवाल ये है अदनान हैदर, जहां पे उस सेंसिटिव लेवल के ऊपर आप मालूमात का तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते, वहां पे मेरे और तुम्हारी बारे में जो सारा डाटा इकट्ठा किया गया है. उसका सिक्योरिटी सिस्टम होगा कोई, ऐसा नहीं है क्या? नहीं है ना. वो क्या है बताए? तो बताएंगे नहीं ना नहीं, कहाँ बताया? आगे चल के. और कल पेश किया असेंबली में और फिर कौमी असेंबली में कायमा कमेटी को कहा कि हर सूरत में इसको बुध के दिन मंजूर करना है. ये है अवाम के नुमाइंदे, ये है कानून साज. सिक्योरिटी रिस्क है ना, तो इसलिए जल्दी पास कर. किस चीज का सिक्योरिटी रिस्क है? किस चीज का? अगर कानून साजी डिजिटलाइजेशन पे है तो इट्स और फाइन. मेरे प्यारे, लेकिन बताओ ना कि अभी तक तुम्हारे पास क्या नया डेटा तुम इकट्ठा करना चाहते हो? भाई साहब, ये तमाम ड्रामे होने से पहले आंखों में आंखें डाल के, मैं अब कुछ बातों, मैं बंदों के नाम नहीं लेना चाहते, इस वक्त बड़े अहम तरीन कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पर फाइज उन्होंने मुझे खुद बताया, एक साहब कराची से अगवा हुए थे और अगवा बराए तवान का वाकया था. उनसे कहा गया कि ठीक है इतने पैसे अदा कर दें, रहा हो जाए. उन्होंने कहा मेरे तो पास इतने पैसे है नहीं. उन्होंने कहा कि ये आपके फलां बैंक में ये इसमें इतने पैसे हैं, इतने पैसे, इतने पैसे. या हम उस माशरे में रह रहे हैं. उसमें तो उसको मेरे ख्याल में बीवी और बच्चों की डिटेल भी बताई कि देखिए किसके नाम क्या कुछ है. आ गई समझ? हम उस मुआशरे में ये करना चाह रहे हैं. और दूसरा यार, एक प्रिवेसी होती है. मिसाल के तौर पर अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मेरी बीवी, मेरी बहन, उनको कुछ ऐसा मर्ज लाहक हो जाता है जो शिफा भी हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ये कभी नहीं पब्लिक में ना आए, ये रिकॉर्ड में ना आए.
اللہ تعالیٰ نے خیر کی, یہ ایک واقعہ ہوا تھا, ہاں, لیکن میری ریب ہی سے کنسرنز ہیں, ٹھیک ہے, سر تو اس کو میرا secure کیا جائے گا نا. بھائی میرے بتایا جائے گا, اسی لیے کمیٹی یہ میں بات, یہ بھی جو ہے, یہ بس میں کیا بات کروں, یہ جو ہمارے آج جو تقریریں کر رہے تھے قادر پٹیل صاحب ہوں یا میری دوست شاہد, سنو میری بات, یہ بھی اس لیے کہ کل یہ ڈان اخبار میں کل یہ پیش ہوا تو اس میں یہ انہوں نے یہ کہا کہ اے انسانوں, اے برادران ملت اسلامیہ, کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ. یہ کرتے یہ ہے کہ انگریزی اخبار کے نا ایڈیٹوریل خاص طور پر جب کراچی میں چھپے نا جان تو پھر پیپلز پارٹی کو خیال آتا ہے, اوف ہم تو ایک پروگریسو جماعت ہیں, ہم تو ہیومن رائٹس کی بات, انڈرسٹینڈ. You see, no, please try to understand, and Don is writing this, and what the hell is happening, This is not fair, eh? Huh? It's not on. That's not the way to go about it. اور آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حمایتی, حکومت کی حمایتی جماعت نہیں, آپ بی ٹیم بنے ہوئے ہیں اس وقت حکمرانوں کے. یہ ایسا نہیں, آپ نے نہیں, پیپلز پارٹی میں کوئی بڑھ نہیں, آنکھوں کے آنکھیں سامنے جہاں میں بیٹھے, میں انہیں کہوں گا کہ مجھے بٹھائے کہ کب بی بی شہید نے یہ اس طرح کے کسی قانون کے لیے یہ کہا تھا. نادرا انہوں نے بنوائی تھی, لیکن نادرا کے لیے جس طرح پروفیشنل وہ لائے, ان کے ساتھ کیا سلوک کر کے انہیں یہاں نکلوایا گیا اور کن کے ہاتھوں ہوا, اس لیے کہ وہ ڈیٹا لینے سے پہلے اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ یار اس کو پریزرو کیسے کرنا ہے. آگئی سمجھ. اب خیر, کل یہ ہوا کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے, کیونکہ یہ شزا فاطمہ کہہ رہی تھی کہ نہیں آج ہی کرنا پڑے گا, آج جلدی. یہ تو بدھ کے دن کرنا ہے, وہ کہہ نہیں شاید آگے کو سیشن بھی شاید ختم ہو جائے نا, پرولونگ ہو جائے. آج چونکہ آگے سردیاں ہونی ہیں جی, پھر تو 1.5 مہینہ لگ جائے گا, اور سیکیورٹی کے بہت خطرے ہیں, اتنے خطرے ہیں, اللہ اکبر. 75 سال ہو گئے یار, سیدھا سادہ کہیں کہ ہمیں حکم ہے تو منظور کرو, کیسے نام نہاد عوام کے نمائندے بنتے ہو. تو ٹھیک ہے نا سر, ہم سب کو پتا ہے کہ ان کو حکم آیا ہے, فیل ہو رہا ہے, سر فائن, اسی لیے سو یعنی تو صحیح نا. اس کے بعد میں نے کہا آپ جو تقریریں کر رہے ہیں, do you want to then disregard, disobey the order which we have received? یا تو پھر جواب دو. نہیں ٹھیک نہیں گل کرو نا. شیزا صاحبہ نے بھی دیکھیں اخلاقی ذمہ داری تو ادا کی نا, انہوں نے کہا فائن بات کیجیے. نہیں, پہلے تو جواب دینے کوئی رضامند نہیں ہو رہے تھے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ جو آئی ٹی وغیرہ کے, یہ جو پی ٹی اے وغیرہ جو ہے نا, یہ معاملات آتے ہیں کیبنٹ ڈویژن کے اندر, اور کیبنٹ ڈویژن کے اوور آل انچارج جو ہیں وہ ہوتے ہیں نام نہاد وزیر اعظم پاکستان. تمہیں پتہ نا کابینہ بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں, ہر منگل کو لگتی ہے, پجمین میچ لگ رہی ہے, یا اس میں بھی نئے لوگ آنے لگے ہیں, کابینہ کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے. حمزہ شریف کو لایا جا رہا ہے. آپ کے پیارے دوست فیصل واڈا صاحب سنا ہے, میرا نہیں خیال, وہ اللہ دی وہ موسن نقوی سے روئے تھے. نہیں میں ایک سیکنڈ, میرا نہیں خیال. اچھا بہرحال اب آپ یہ ڈیویٹ کر رہے ہیں میری بات. نہیں, آپ کو میں میرا دکھ جو ہے خوشخبری دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے دوست وزیر بننے والے ہیں. کون؟ فیصل ڈاڈا واڈا. نہیں, وہ بیچارے اب میرے ساتھ وہ دوست رہے تو بھائی ان کی مہربانی. فیصل واڈا صاحب سے ڈاڈا, میں تو اس دن سے ان کا دیوانہ ہوں جب سے انہوں نے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں کو جوائن کیے بغیر ان کا ٹکٹ لے کے سینیٹر بنے. میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. بڑے آج آپ نے کام نہیں کیا, لیکن ہوم ورک کیا کریں. لیکن جیسے میں کلپ نکال کے عوام کو فیکٹس بتاتا ہوں, مری صاحبہ نے یہ کہا, پٹیل صاحب نے یہ کہا, تو شہزاد صاحبہ نے کیا کہا, یا بتائیے یا سنوائیے. وہ سنو نا. پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایک ساجد میجی صاحب ایک کریکٹر سے ڈھونڈ رکھا ہے, وہ بناتے ہیں پارلیمنٹ سیکرٹری کو. انہوں نے یہ سیکورٹی اور جو ڈرامے لائے, مطمئن نہ ہوئی اسمبلی. پھر شزا بی بی بولی, اس میں بھی انہوں نے کمال کیا ہے, فلور پر بولی. ارے کیا بولی, سبحان اللہ. شارٹ نکلوایا, وہ بھی سننے سے تعلق نکلوایا رکھا ہے, کام کیا انہوں نے. سر اسد صاحب نکلوایا جی, اسد چودھری صاحب. نہ میرے پاس کوئی بٹن ہے جس سے میں انٹرنیٹ بند کرتی ہوں. جہاں تک ایکس کی بات ہے سر, یہ بار بار
बात की जाती है कि शायद किसी ये आज़ादी राय को की वजह से जो है वो एक्स ब्लॉक्ड है। मैं सिर्फ इतनी वजाहत करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा अवामी लेवल के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो या टिकटॉक है या फेसबुक है। एक्स की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज एक्स ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। तो हम सिर्फ सिक्योरिटी मरीज के लगाते हैं और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की एडवाइस पे लगाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जैसे एडवाइस करे कि भाई हालात ठीक हैं तो उस वक्त हम इसको खोल देंगे। हमें तो इसमें कोई कदम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका टाइम पीरियड भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही बता सकती है, हम कुछ नहीं बता सकते, पीटीए वाले कुछ नहीं बता सकते इसमें, ना कैबिनेट डिवीजन बता सकती है। हमने तो उनके एडवाइस पे इसको किया हुआ है, जैसे वो एडवाइस करेंगे हम उनको खोल देंगे। अब ये वो बेहतर जानते हैं भाई हालात कब ठीक होंगे या ठीक है या नहीं है, ये तो वो बेहतर जानते हैं। अब ये है कि ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इनको ये पता नहीं है कि इनका ख्याल है कि वजारत दाखिला ही बता सकती है, वजारत दाखिला ही बता सकती है कि इस मुल्क में सिक्योरिटी के हालात का बेहतर होंगे। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, काबीना का कोई ताल्लुक नहीं है, कैबिनेट डिवीजन को तो कुछ नहीं लेना देना। और बात यह है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर चाहेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो मरीख में होती है, हम पाकिस्तान में रहते हैं और वो हमसे बालातर हैं, वो ऊपर हैं, वहाँ तक जाने का हमारे पास रास्ता नहीं है। और वो तो हमें, मैं तो देखें ना जी क्या करूँ, ये तो कह रहे हैं आपके कैबिनेट सेक्रेटरी साहब। उसके बाद वाजे तो किया ना। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि जी ना ये मेरे बस में है ना शहबाज शरीफ के बस में है, मोहसिन नकवी साहब जिस दिन मुतमईन होंगे उस दिन खोल देगा, ये कह रहे हैं बेचारे। ठीक है जी, तो ठीक कह रहे हैं ना, तो उन्होंने सही जवाब दिया। और दूसरा उन्होंने, आप जो रोज रोना पीटना डाल के बैठ जाते हैं आप, अच्छा सुनो ना, उसके मुकाबले में अब शिजा फातिमा साहिबा वो ये फरमाती हैं कि फैक्ट्स बयान किए ना उन्होंने, जी फैक्ट्स उन्होंने बयान किए, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कुछ, यानी उनका ख्याल था ये नाम नहाद ये जो यू नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी राय और फलाने हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक्स की औकात क्या है, इसको तो सिर्फ पाकिस्तान में 2% लोग देखते हैं। उन्होंने फिगर ये सही दिया, मैंने असद चौधरी से भी कंफर्म कर लिया। सर बिल्कुल सही कहा होगा, लेकिन खुदा के लिए अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी कहें कि एक्स पे अपने पैगाम न लिखा करे। उन्होंने जो मोदी को भेज दिया, मुबारकबाद, और बाकी और जो बयान शयान देते हैं। अच्छा, और ख्वाजा आसिफ साहब बताते खुद बहुत ज्यादा हर दूसरा बयान जो है वो एक्स पे देते हैं। उन्होंने समझा दो कि जी क्यों अपना वक्त आप टिकटॉक एक बना दिया करें और उस पर चला दिया करें। वो कहती हैं कि वतन अजीज में टिकटॉक और फेसबुक सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, अगर हमने किसी को रोकना होता तो हम उस पर तो हम उन पे रोकते। हाँ, ट्विटर क्यों बंद किया? टिकटॉक को जो है ये कभी नहीं बंद करेंगे, क्योंकि टिकटॉक है, चीन अपना यार है, उस पर जानिसार है। टिकटॉक के लिए कल पहली मर्तबा उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लंबी चौड़ी, मारो लागू फ्लोरिडा मियामी, नौ मुंतखब सदर ने। मैं देखता रहा, पूरी रात जागता रहा, मैं कि शायद साडा जिक्र है, चूंकि आपने मुझे कहा था कि रिक ने कर दिया। मैं कहा साडा भी जिक्र है। उसने सिर्फ 2 ही बातें की। एक तो उसने कहा कि हमास वालों सीधे हो जाओ, इजराइल के जो है वो जो तो आपने यरगमाली बनाए हुए हैं, वो छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तो वो छोड़ो, वरना कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाओ। तो एक तो हमास से मुतालबा किया मैं कि आप ये मुतालबा करेगा कि पाकिस्तान वालों बंदे मार जाओ, बंदे मार जाओ, तो उन छोड़ो वरना। अच्छा, वो नहीं किया। दूसरा उसने कहा यूक्रेन के सदर को, अब एक कोशिश करो कि जरा रूस से तुम्हारा मुकाबला हो जाए। टिकटॉक पे उसने कहा कि इस पर जरा देखना पड़ेगा कुछ के, क्योंकि हमारी कोई यानी कि प्राइवेसी के इश्यूज है। अब वो चीन के साथ खेल रहा है, यू नो, बट ही केप्ट इट वेग। यार जहां पे ट्रम्प साहब जो है वो वेग रहे, वो 83 की किवें कांगे ठीक है ना। बाकी फेसबुक जो है ये जनरली इसके लिए इस्तेमाल होता ही। लेकिन एक बात मैं अर्ज सिर्फ ये इंटरनेट करना आप चाह रहा हूं, इल्जाम उन पे लगा दें, उनके पास बटन तो नहीं है ना।
کہ بلب ہے کہ بٹن سٹو کے بلب او بھائی ہم لوگوں کو یہ تو سمجھاؤ، جیسے وہ قادر پٹیل صاحب کی ایک بات ٹھیک ہے کہ یہ سست کیوں ہے، آخر یہی تھا نا. کل آپ روتے نہیں رہے ہو کہ آپ ایک فون ملا رہے تھے، نہیں ملتا تھا. نہیں ملتا. 3 دن سے اسلام آباد میں پرابلم ہے نا، کال اچانک ڈراپ ہو جاتی ہے. اچھا کال اب یہ جاتی کہ نہیں. اس کے پیسے ہم دے رہے ہیں، ہم پیکجز دیتے ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ آئے، اور جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ یہاں پہ لگتا ہے فیس بک پہ کتنی لیکس آئی ہیں ہاں وہ اس سمے کہ وہ ٹھیک اپنا کہ کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے سمیت، مطلب کہ کوئی آج تک پتا چلا کیسے ہوئی، نہیں. کیا طریقہ کار. وہ فائر وال اب لگی ہے نا، اب سمجھ آئے گی نا. تب فائر وال نہیں تھی ہمارے پاس. نہیں تو اس وقت بھی تو کسی نہ کسی نے ٹیپ کی تھی نا، کسی نے باہر دی بھی. ہاں وہ تو خیر ٹیپ تو بہت ساری چیزیں ویسے بھی ہو رہی نہیں ہوتی ہیں. اس طرح مت کرو. کیا آپ کو بریک میں لینی؟ بریک لینا چاہتا ہوں کیونکہ جواب مجھے بھی نہیں مل پا رہا میرے سوال کا، جس طرح کیا سوال ہے آپ؟ کہ انٹرنیٹ کیوں سلو ہے. انٹرنیٹ سلو اس وجہ سے ہے کہ ہم نے جگاڑ لگانے کی کوشش کی، اسی کو 2 نمبر دا لالے موسے والی فائر وال لائیے اور پٹھی پہ گئی. اچھا اب بجائے اس بندے کو تلاش کرنے کے جنرلائزنگ جن نے 2 نمبر کا کام کیتا ہے، آپ نے میری اور آپ کی زندگی عذاب کر دی. یہ ہے اتنی سی بات. لیٹس سی جی کیا ہوتا ہے. اس کو ہم فیس کرنے کو کوئی بھی تیار ذمہ داری نہیں. لینے کو تیار نہیں ہے، نہ پی ٹی اے، نہ پارلیمانی سیکرٹری، نہ منسٹر. اچھا پی ٹی اے والے بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے تو کوئی وی پی این بند نہیں کیا. سارے کھلے ہیں، ان کو کال نہ تھا، چیئرمین نے یہی کہا تھا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ نصرت صاحب نے پیپلز پارٹی کو تو رگڑ دیا، فائن. ایک ہوتی ہے اپوزیشن جو کہ پارلیمان کا حسن، ارے ان کا بریک کے بعد پارلیمانی حسن opposition سارے کی بات کو کریں. جانے سب رلے چلو بریک کے بعد لیٹس اسٹاپ آن بریک. سب رلے. ویلکم بیک. اپوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں اپوزیشن کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بالکل اپوزیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومتی اتحادی ہے نا؟ حکومتی اتحادیہ ٹھیک ہے. ان کے پاس یہ قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں، ہم بیچارے تو رائٹ ٹو انفارمیشن کے لیے کوئی کرے پلیز دائر کرے، کو منظور کرے یا نہ کرے، لیکن دے ایز ممبر آف نیشنل اسمبلی ان کو وقفہ سوالات دیا جاتا ہے. کی فیسلٹی حاصل ہے یا نہیں، بالکل ہے. جس کا جواب دینا واجب ہے. کیا یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جی یہ فائر وائل کا وینڈر کون تھا؟ بھائی یہ جو کپ ہے یہ اور کسی فائر وال تھی بھی کہ نہیں تھی، یہ کچھ اور او تھا. نہیں میرے پیارے، یہ کپ کہیں سے خریدا گیا ہے نا، اس کو کوئی دینے والا ہے، کوئی دکان ہے، باہر سے آئی ہے. اچھا جب یہ آئی تو کیا اس کا کوئی ڈسپلے ہوا تھا؟ اس ڈسپلے میں کون کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں؟ پوچھ سکتے ہیں. کیا آپ نے ابھی تک پوچھے ہیں یہ سوال؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ فائر وائل جو ہے وہ کس نے لی. ایک پرائیویٹ آدمی نے لی ہے، لیکن وہ طاقتور آدمی ہے. اور جب اس کا ڈسپلے ہو رہا تھا تو اس وقت ہی 2-4 جو کہ آئی ٹی کے کام کرنے کا کھچا مار دے، صحیح معنوں میں میڈ ان لالا موسا کام ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آ جاؤ. بات یہ ہے کہ یہ بھی دل سے میرے پیارے بھائی معاملات کو ایک تقریر کر دی نا، وہ تمہیں بتایا کہ وی آر فار آزادی اظہار. اسی شزافات میں سے آزادی اظہار، ہر ایک کا یہی میں نے یہی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے. اگر صرف 2% ہوتا تو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فائن آگے وہ نہ ایکس کو استعمال کر رہے ہوتے، نہ ہی خواجہ صاحب اتنے. اب ایسے موقع ہوتے ہیں جب اپوزیشن جو بقول آپ کے جمہوریت کا حسن ہوتی ہے، پارلیمان کا اور جمہوریت کا، ہیں؟ وہ یہ دیکھتی ہے یار بڑا موقع اچھا چنگا ہے. موقع، بہت نار اللہ ہوتے پیجو. پیپلز پارٹی جڑی انہیں کھڑی ہوئی، ساتھ ہی جناب کھڑے ہوتے ہیں عمر ایوب صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن، میں شادیہ مری صاحبہ، ہمارے تمام تر اختلافات کے باوجود میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. وہ تھے نہیں نا وہاں پہ، نہیں واک آؤٹ کر کے بائک آؤٹ کر نہیں جی نہیں، انہوں نے کیا کیا، میں نے کہا دیکھیں وزراء یہاں آتے نہیں ہیں،
और हमारा माही अभी तक छोड़ा नहीं। तो जब तक साढ़े माही नहीं छड़ दे तो असी कौमी असैम्बली च नहीं मिलो, साडा बाइकआउट जी। तो बाइकआउट करके चले गए। यानी सीधा साधा कहा कि ये छुरी है आपके पास, पीपल्स पार्टी शोर में जाती रहे है, जमहूरियत का हुस्न कायम रहेगा, लेकिन वो आपकी साथी है। उसने वोट ना भी दिया, आप हम नहीं होंगे, आप अपनी मर्जी से अपना काम चलाएं। तो उमर अयूब नाम निहाल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से बड़ा फैसिलिटेटर इस हुकूमत का कौन है? यस, व्हाई आर यू लीविंग द कौमी असेंबली? नहीं, उन्होंने अपना एजेंडा सामने रखा, अपना एजेंडा सामने ये रखा कि मारे अडियाला वाले को छोड़ दो। ये सबसे बड़ा मुतालबा है ना उनका। ओ यार, तो आप उसके लिए स्पेस बनाओ ना, पहले कोऑर्डिनेशन तो बनाओ। पहले तुम्हें खाली इसलिए मुंतखब नहीं किया गया कि अडियाले वाले नु छड्डो। आप ठीक है, फाइन आप यार 1 पॉइंट एजेंडा था, नहीं था, बट इस अपोजिशन 1 पॉइंट एजेंडे पे काम करती है। नहीं करती। अपोजिशन एक ग्रैंड एजेंडे पे काम करती है, नेशनल ट्रस्ट पे काम करती है, पार्लिमानी अमूर को चलाने में एक बड़ा रोल प्ले करती है। फाइन यार, अब आप मुझे अपोजिशन भी समझाएं। मैं बदनसीब जो 1985 से जो है फैसिलिटेटर कह दिया ना, फैसिलिटेटर। यस, इससे बड़ी इस हुकूमत की हिमायत नहीं है। इसी से मैं कहता हूँ मुख्य हुए ने, ये सब अंदर से एक है, क्योंकि ये हुक्मरान तबकात है, ये हमारे अशराफिया है। इसको तेरा मेरा आम आदमी का कोई दर्द नहीं है। सब ड्रामे लगाते हैं, ट्रस्ट मी। और ये भी नेपो पे भी है ना, ये भी मौरूसी सियासतदान है ना। ये क्या है? नहीं, हल्के वालों ने वोट फील्ड मार्शल। अच्छा, तो बाकी सारे आंधे कौन की वो खोल है तने। जुल्फकार अली भुट्टो का भी वो भी लाड़काने से वोट ही लेकर आए हुए हैं ना। और उन पे ये सवाल नहीं है 45-47 है ना, करो कल से भी करो। ये भी जाहिर है फील्ड मार्शल अयूब खान साहब के पोते हैं, इन पे भी कोई 45-47 का नहीं है। नहीं, इनके खिलाफ हुआ था, इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। क्या करें ऐसे तू यानी कि रिपोर्टर के साथ बैठे। चलो ठीक है, मतलब फैसिलिटेट हो गया, ठीक है। और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं तो गुलेल बनावांगा, ये वो है, मैं तो गुलेल बनावांगा। पहले साडा माई छड्डो, बाकी गल्लां बाद विच। अच्छा, उस वक्त तक जब तक माई नूं नहीं छड़ दे, डिजिटल एक्ट बना लो, हर एक दे कर लो, फॉरेंसिक लैब भी बना लो, पीका एक्ट में भी तरमीम कर लो, बंदियां नूं फड़ लो। आ गई समझ? 8 महीने तो उन्होंने भरपूर रेजिस्टेंस की है ना फ्लोर के अंदर। कौन सी फरवरी से है ना ये? कौन सी मसलन? कोई एक नहीं, एहतजाज किए, पार्लिमानी एजेंडों की कॉपियां फाड़ी, शोर शराबे किए। अल्लाह खैर सल्ला। तो इसी तरह ही होता ना सर। उसके बाद ये कि हमारे साथ मुज़ाकरात जब करो। आगे नंबर पूरे हो ना, अब मुशर्रफ के टाइम में आप देखें ना, शरों के टाइम में क्या हुआ था? नहीं, वो तो काफिले की इतनी तगड़ी थी, अब बेचारी अपोजिशन क्या करती। अल्लाह अकबर, खुमैनी बेनजीर साहब के पास मेरे 15 या 16 थे, 17 थे। शरों के दिनों में बेनजीर साहब, मुशर्रफ का भी बता दिया, अब बेनजीर साहब का भी। मुशर्रफ साहब का उस वक्त तो 2002 में जो इलेक्शन हुए थे, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे वाहिद अक्सरियती जमात की सूरत में उभरी थी। 2002 में नहीं, ये आप जो बात कर रहे हैं ये 1997 वही दोनों हवाले दे रहा हूं मैं। इस पर आता हूं, मैं खबर दे दूं। 190 मिलियन पाउंड का फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ आज जेल में कार्रवाई थी। 23 दिसंबर क्यों? जो वो कह रहे हैं, खबर आ रही है, उसने बताया था 23 दिसंबर को ये फैसला सुनाया जाएगा, अगर मैंने गलत नहीं सुना। कार्रवाई मुकम्मल होगी, फैसला महफूज हो चुका है। 190 वुकला के दलाइल मुकम्मल हो गए, जरा मुकम्मल हो चुकी, हक के दिफा जो दिया होगा थोड़ा बहुत वो भी मुकम्मल हो चुका। आखिरी जो फैसला होता है नाजरीन, जो जज लिखता है, वो लिखने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है, और वो महफूज फैसला अब 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। तो अब ये 23 दिसंबर को ही ज़हन में रखते हुए कल उमर अयूब साहब आएंगे, फिर वापस हमने लोग नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। भारत 190 मिलियन पाउंड का फैसला आज अदालत ने अडयाला जेल में महफूज कर लिया। आज क्यों नहीं सुनाया? यार 23 क्यों नहीं? कोई गल, उसमें कुछ लिखना है। आज क्या डेट? जज के पास एक अख्तियार होता है आज तारीख कि वो शॉर्ट ऑर्डर लिख कर महफूज कर लेता है। ये तारीख आज क्या है? आज क्या तारीख? आज तो 18 तारीख है ना। एक बड़ा लंबा मुकदमा है ना। जज साहब ने उसमें एक तफसीली आर्गूमेंट अपने लिखने होते हैं, रेफरेंसेस कोट करने होते हैं, दोनों तरफ के दलाइल को सामने रखना होता है। तो ये एलिगेशन नहीं लगा सकते जी फैसला
नहीं मैं ये नहीं कर रहा। देखो ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ, 1 साल की कार्रवाई है ना सर, बाबू, उस पे फैसला सुनाना। अरे डियर अदनान, फैसला जो है वो यकीनन ये जज साहब का राइट है कि वो महफूज रख के कहें कि चूंकि ये एक मुतल्लिक मामला है, आई नीड टू, होगी बात। दूसरी बात ये है कि अभी तक जितने भी मुकदमात जो हैं बानी के खिलाफ चलाए गए हैं वो तमाम के तमाम बहुत जल्दी में चलाए गए थे, ठीक है, मतलब जिसमें इद्दत शिद्दत ये निस्बतन उसके मुकाबले में एक हट के मुकदमा है कि जिसकी तकरीबन 1 साल तक समाअत हुई है। उसकी भी कई वजूहात हैं जिससे डिबेटेबल है। एनीवे व्हाटएवर, लेकिन 1 साल तक समाअत हुई है। तो उस हवाले से ये जरा थोड़ा सा हट के बनता है। और अब फैसला आएगा 23 को, 23 बनती है मेरे ख्याल में सोमवार, मंडे वाले दिन। फैसल चौधरी साहब जो उनके वकील हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई, वो आज उन्होंने शायद अडयाला जेल के बाहर कहा था कि एतवार तक अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने, नहीं मुझे इसमें रहाई शामिल है, रिहाई और सियासी कैदियों की रिहाई और बाकी चीजें जो दो। अच्छा तो फिर ये भी उन्होंने कहा कि एतवार तक, तो सोमवार को हम अपना अगला लाहे अमल, चले तो वो फिर अगला लाहे अमल ऐलान करेंगे तो वो फैसला सुना देंगे। हाँ, तो फैसला तो जब कोर्ट ने कह दिया तो अब कोर्ट सुनाएगी। तो डॉलर का क्या करें आप फिर? खरीद लें, अभी कुछ है था को पैसे उसके नहीं, मेरे कुल कितने डॉलर ऐसे वैसे। बाय द वे आपकी इत्तला क्लियर से कि इंडिया में कल इंडियन रुपी की डॉलर के मुकाबले में जो है रिकॉर्ड गिरावट हुई है। इंडियन रुपी की? जी जी, वो उनके रिकॉर्ड गिरावट हुई होगी, वो पिछले कई सालों से स्टेबल चला आ रहा है, तो कई उसमें होगी सर रिकॉर्ड गिरावट। अरे बाबा क्या रहा हूँ ना कि वो कई सालों से वहाँ इकोनॉमी इतनी स्टेबल है। अच्छा, और कुछ पैसे गिर गई होगी। भी बैठा हुआ था, हमारे यहाँ भी उठ रहा था, हम बड़े खुश थे। और तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि भाई ये दुनिया भर में कहीं भी मईशतदान आपको समझाते रहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ना, ब्रेक हाँ, ब्रेक ले लो, बोल जल्दी 30 सेकंड। हाँ, इसकी वजह है ट्रम्प की वजह से ही हमारा भी बैठ रहा है। वजह क्या है? आज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिकी बैंक जो है वो अपना रेट देगा। वो रेट एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि चूंकि ट्रम्प साहब और उनके साथ बिलियनर आ गए हैं तो वो अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। उसकी वजह से अमेरिकी बैंकों से लोग कर्जा लेकर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे बजाय इसके कि पाकिस्तान या किसी और बैंक में। ठीक है, एक ब्रेक जी फौरी तौर यहाँ इन्वेस्ट कर। ठीक है, एक ब्रेक बैठ रही है जी। नाज़रीन वेलकम बैक। खैर जो बात ये है जी, बहुत दिनों से मैं यहाँ पे बैठा हुआ फरियाद करता चला जा रहा हूँ, हाथ बांध के कि सर पारा चनार भी पाकिस्तान है, और खुदा के लिए वो बिल्कुल हमसे कट चुका है। और अब वहाँ से कल से ऐसी दिलदोज खबरें आ रही हैं कि फैसल एबी साहब जो हैं वहाँ अद्वियात पहुँचा रहे थे। उसके बाद आज हैरत की बात है, वो है कराची, वो है पारा चनार। कराची में कामरान ट्रेसोरी साहब जो कि गवर्नर होते हैं सिंध के, उन्होंने फरमाया कि वो जिरगा लेकर अलामा अब्बास नासिर का और मुफ्ती मुनीफ साहब का और भी एक दो नाम लिए, वो जाना चाहते हैं ताकि वहाँ पे सुलह सफाई हो पाए, क्योंकि वहाँ के जो सूबाई वज़ीर आला हैं उनकी भी उमर अयूब साहब की तरह दीगर प्रायोरिटीज़ हैं। तो मैंने अपने साथी फ़खर काका खेल से ये दरख्वास्त की, सुबह से मैंने ये कहा था कि मेरे प्यारे भाई वहाँ के लोगों से पूरी तरह राब्ता करके हमें और कुछ नहीं, उम्मीद नहीं भी दिला सकते तो ताज़ा तरीन सूरत हाल ज़रूर बता दें। तो वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर। नाउ माइक इज़ योर्स एंड आप हमें और हमारे नाजरीन को सारी तफसीलात बता दें। जी नुसरत साहब, मैं पहले शुरू करूंगा। आप जिस जरगे की बात कर रहे हैं, हमारी जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक कल वो जो उलमा का जरगा है वो पहुंच जाएगा कोहाट, इस्लामाबाद से कोहाट रवाना हो जाएगा। आज की जो सूरत हाल है, जैसे कि आपने जिक्र किया, अद्वियात की शदीद किल्लत है, खुसूसन अपर कोरम में। तो आज एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए, बड़े साइज के हेलीकॉप्टर के जरिए 2000 किलो जो अद्वियात थी वो कोरम पहुंचा दी गई हैं। इसके अलावा अब तक हमें यह बताया गया, सरकारी जराये ने इसकी तस्दीक की कि 21
नवंबर से जारी होने वाले इस रीजन के अंदर जो मसलकी फसादात थे उनमें 123 के करीब यानी 123 जो है हलाकतें अफराद जाबाहक हुए। सरकारी सतह पर ये सरकारी जराए ने इसकी बाकायदा तस्दीक इट्स अ ह्यूज नंबर भाई, ह्यूज नंबर। बिल्कुल जाहिरी बात है, लेकिन चूंकि मीडिया या वहां तक रसाई नहीं है तो इस वजह से मैं मोहतात सरकारी जो फिगर्स है वो कोट करूंगा। कुछ जरा इससे ज्यादा कह रहे हैं लेकिन मैं उससे इज्तिनाब बरतूंगा। इसके अगर वॉल्यूम को आप देख लें कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, इस वक्त मेरे ख्याल में 3 से 4 दर्जे हरारत होगा रात के वक्त उस रीजन के अंदर, और अगले वीक ये दर्जा हरारत -3 -2 यहां तक गिर जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जो अब तक जो सरकारी जरा है उन्होंने कहा कि 750 के करीब फैमिली टेंट, जिसमें मतलब पूरी फैमिली आती है, तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग इस वक्त खुले आसमान के तले जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बगन और बाचाकोट से डिस्प्लेस हो गए, और इस वक्त भी जैसे कि आपने इस प्रोग्राम के शुरू में इंटरनेट का हवाला दिया, इंटरनेट वहां पर तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते, तो मुवासिलात का जो निजाम है वो पूरी तरह से टूट चुका है। और इससे कबल 2007 में जब फसादात हुए थे तो हम ये देखा करते थे कि जो अपर कुरम के जिस मसलक से वहां के बाशिंदे ताल्लुक रखते हैं उनके लिए अफगानिस्तान से किसी न किसी हद तक फूड, बाकी जो यूटिलिटीज थी वो पहुंचा दी जाती थी। लेकिन अब बदकिस्मती से एक तो बॉर्डर बंद है और दूसरी तरफ हुकूमत भी काबुल में बदल चुकी है। इस लिहाज से हम जो अपर कुरम के जो लोग हैं उनको हम महसूर कह सकते हैं। अलबत्ता हमें यह बताया गया कि कुछ हफ्ते कबल 5 के करीब जो क्रिटिकल इंजर्ड थे पाड़ाचिनार के, उनको एयरलिफ्ट किया गया। पाड़ाचिनार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के हवाले से हमें बताया गया कि वहां पर अद्वियात की खेप पहुंचा दी गई है। लेकिन जिस तरह के मैंने जिक्र किया कि अशियाए खुर्दनूश जो 2007 में थी, इस बार वो कटाई का शिकार है, और यही वजह है कि जो कोहाट रीजन की जो इंतजामिया है जिनके साथ कुरम भी आता है वो कोशिश कर रहे हैं कि कल बहर सूरत ये जो मुज़ाकरात हैं इनमें दर्जनों फखर एक बात है, प्लीज आप ही उसकी तस्दीक कर सकते हो, उसमें ये दावा हुआ था कि जी जिरगा तकरीबन सुलह करवाने में कामयाब हो गया था, लेकिन एक फरीक, जाहिर है हम किसी एक फरीक का नाम नहीं लेना चाहेंगे, हमारा काम आपको भड़काना नहीं है, वहाँ के लोगों के लिए अमन लाना है और उनके दिलों में रहम डालना है कि यार खुदा के लिए अद्वियात और खाना तक भी ना पहुँच पाए और सर्दी के इस मौसम में। क्या ये खबर दुरुस्त है कि एक जो फरीक है उसने कहा कि नहीं हम तो हथियार सरेंडर नहीं करेंगे या जमा नहीं करवाएंगे, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ रही? जी, अब आपका क्वेश्चन मैं पूरी तरीके से सुन नहीं पाया। नहीं, ये कहा जा रहा है कि जिरगे की अभी तक की कोशिश इस वजह से नाकाम रही कि कोई एक फरीक दोनों में से ये कह रहा है कि हम हथियार जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे, यानी जमा नहीं करवाएंगे अभी फिलहाल। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल ये दुरुस्त है, और इसमें कई खदशात हैं उस फरीक को, क्योंकि कुरम की अगर आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें तो ये 3 अतराफ से अफगानिस्तान में घिरा हुआ है। सिर्फ एक रास्ता है, ये तल कोहाट रोड जो 80 किलोमीटर या 80 से ज्यादा किलोमीटर पर मुहित है, और अब तक तारीख में जितने भी फसादात हुए हैं इस 80 किलोमीटर के बीच में ही हुए हैं, चाहे वो एक मसलक के लोगों को निशाना बनाया गया या दूसरे मसलक के लोगों को निशाना बनाया गया। लेकिन इसके साथ साथ नुसरत साहब जो फेक न्यूज है, क्योंकि मुझे बताया गया कि 100% इसमें जो कसूर है, क्योंकि गजा की तस्वीरें, बाकी इस तरह की तस्वीरें मुकामी आबादियों में अपर कुरम में शेयर की गई, और जो वहां के अपने जो मुकामी जर्नलिस्ट हैं जो उस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने हमें बताया कि प्रॉब्लम फेक न्यूज थी। जब तक इंटरनेट को डाउन किया जाता तब तक फेक न्यूज ने आग लगा दी थी, और एक ही रात में मुखालिफ मसलक ने अपने दुश्मन मसलक के ऊपर। तो यार हम पहले यही तो रो रहे थे कि जो मकसद था फेक न्यूज ने तो आग भड़का दी। तो मेरा ख्याल है कि जब ये फेक न्यूज फैली उस वक्त तो नाम नेहाद फायर लग चुकी थी ना। बिल्कुल लग चुकी थी, और उसके बावजूद 300 के करीब सरकारी आदादुशुमार बता रहे हैं कि दुकानें जली हैं, और इस तरह 100 से जायद घरों को जलाया गया।
based on those fake news circulating in that region on that night. So मेरे ख्याल में और अब भी एक दबाव है उस फेक न्यूज का, उन वीडियोस का जो दोनों मसलक के नौजवानों की वीडियोस में पड़ी हुई है। दूसरी जानिब जो असलहे की आपने बात की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का यह मानना है कि जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है उसका यहाँ क्या काम बनता है? होल्ड ऑन अ सेकंड फखर काका खेल, बात यह है कि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े के लिए तो प्यारे भाई मैं तूर मार वो जो गन्ने शने वो भी लगाई हैं, वो ठीक है, अफगानिस्तान हमसाया है, लेकिन एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है, क्या किसी एक फरीक के पास जो है वो फजाई हमले की सलाहियत भी आ गई है कि दूसरे फरीक ने एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा ली? देखिए, इसमें एक अहम बात यह भी है कि कुछ दिनों कबल जब जिला इंतजामिया बशमूल पुलिस अफसरान उस जगह का दौरा कर रही थी तो उनकी हेलीकॉप्टर के करीब फायरिंग भी की गई। लगता है ऐसे है कि उस वक्त ये मालूम हुआ कि जमीन के ऊपर किसी के पास भी हो लेकिन एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद है, और यही वजह है कि उस वक्त के बाद जो इदारे हैं वो काफी तशवीश में मुब्तला हो गए और अब उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि पहले इनको डीवे पनाइज तो किया जाए, क्योंकि किसी भी लम्हे कोई भी फेक न्यूज टाइम कम है। ये बता दीजिएगा कि यहाँ जब कच्चे के डाकुओं का मामला हुआ तो पंजाब और सिंध के वजीर आला को बहुत सुनना पड़ा और उन्होंने बहुत इन्वॉल्व भी हुए। KPK की जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, वहां के वजीर आला साहब ने और हुकूमत ने क्या इकदाम किए इन तमाम चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए? वो एक दफा जरगे पर गए हैं, उसके बाद जाहिरी बात है, देखें अदनान भाई, ये तरजीहात का मामला होता है। मुझे इस वक्त यार 123 बंदे आप बता रहे हैं जो शहीद हुए हैं, ये नहीं बता रहे सरकारी तौर पर इनको, मेरे अपने ये प्रायोरिटी नहीं है। मतलब 100 से ज्यादा बंदे की जान चली जाए और आप कह रहे हैं कि वजीर आला की प्रायोरिटी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। और लेकिन बदकिस्मती सी की बात यह है कि वफाक भी इसको प्रायोरिटी पे नहीं दे रहा ना। होना तो ये चाहिए था कि वजीर दाखिला साहब जो क्रिकेट की तरफ भी भागते हैं, इंटरनेट पर भी नजर रखते हैं, होना ये चाहिए था कि वो अब तक जिस तरीके से हमने PTM में देखा जब हलाकतें हुई उसके बाद ये साहब नमूदार हुए पेशावर में, बिल्कुल तो अब इतने बड़े पैमाने पर और इतने अहम रूट के ऊपर, और ये कॉन्फ्लिक्ट नुसरत साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत अपना शुक्रिया, बहुत ख्याल रखिएगा। मैं शायद आपको दोबारा भी दूंगा, बहुत मेहरबानी।